جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان فرمایا اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کو بطور مفہوم اس کے خلاصے کے طور پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے بغداد معلیٰ کے اندر، 30,000 حدیثیں ان کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی، بڑے محدث، عالم، فقیہ اور اپنے وقت کے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن مقدس کو 7 قرأت پر تلاوت کرنا جانتے تھے، یعنی کہ وہ قرأت 7 سے قرآن مقدس کی تلاوت جانتے تھے اور حافظ قرآن تھے، بڑے زاہد، بڑے عالم۔ جیسے ممبئی ہندوستان میں عروس البلاد کہلاتا ہے، ویسے عراق کی سرزمین پر بغداد عروس البلاد تھا، اور وہاں پر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، فقیہ، محدث اور اتنے بڑے زاہد اور عابد تھے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید اور ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، حج کے ارادے کا جیسے لوگوں کو علم ہوا، لوگ جوق در جوق آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا میں آپ کے ساتھ ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج وہی کرے گا جو مکمل توکل کے ساتھ نکلے۔ ہزاروں شاگردوں کو لے کر کے نکلے، اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اتنے معتمد اور اتنے مستند وہ فقیہ اور محدث تھے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی جیسے لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے دور کے صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندی عطا کی ہے، سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے شیوخ اور مشائخ میں ان کا زیب و نام آتا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو شیخ ابو عبداللہ اندلوسی جیسے فقیہ اور زیب و محدث کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی حج کے لیے نکل جائیں۔ یہ قافلہ چلا، چلچلا دھوپ تھی، جیسے یہ قافلہ نکلا تو پانی کی پیاس کا احساس لوگوں کو ہوا۔ شیخ نے اتنے توکل کی بات کی تھی کہ لوگ مشکیزیں بھی ساتھ نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو پھر اسی شان سے نکلے۔ اپنا انداز تھا ان کا۔ ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو اس بستی میں دیکھا کہ لوگ شرک میں گرفتار ہے، اور کوئی آنکھ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سلیب کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ شیخ نے یہ سب منظر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں پیاس بھی لگی اور چلچلاتی دھوپ بھی ہے، اگر یہاں پر دوپہر میں قیام کر لیا جائے تو شام کے وقت روانہ ہو جائیں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ رک گئے اور گرجا کے نیچے جو دیوار کا سایہ تھا وہیں پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ شیخ کو احساس ہوا کہ میرے شاگرد اور قافلے والے پانی کے حوالے سے بے چین ہیں اور ان کو پانی ملتا نہیں۔ جیسے ہی وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پانی کی تلاش میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا سا تالاب ہے، اور تالاب پر جو ہے کچھ لڑکیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور وہ پانی بھر رہی ہیں، اور ان تمام لڑکیوں کے اندر ایک اور لڑکی ہے جو بڑی حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ ہے۔ ان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ تو پانی ہی بھول گئے۔ حکم تھا کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑے تو نظر جھکا لو۔ ان سے یہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی کہ انہوں نے اتنے متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، زاہد ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو وہ تکتے رہ گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت پر، خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت اسے بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ شیخ ابو عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ کر چند لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں، یہ لڑکی جو اتنی خوبصورت ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر کے
सबसे अमीर तरीन इंसान और मजहब ईसाइयत का जो बहुत बड़ा रहनुमा है, उस राहिब की बेटी है। जब आंखें चारवी और लड़की को तकते रह गए तो वहीं सर पकड़ के बैठ गए। न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, मगर उन 3 दिनों में भी जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज पढ़ लेते थे और उसके बाद फिर वैसे सर पकड़ कर बैठते थे। सैयद ताइफा जुनैद बगदादी ने आपसे फरमाया, बहुत देर हो गई बेटा, शेख को जाए हुए जरा खबर लाओ। जब वो तशरीफ लाए तो देखा कि शेख तो सर पकड़ के बैठे हैं। वो आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार जब शेख के पास पहुंचे, इतने मुत्तकी के पास, शेख अबू बकर शिबली कहने लगे, शेख क्या बात है? शेख ने बात कह दी कि हजरत क्या करूं कि मैं अपने दिल के हाथों नाकाम हो गया हूं। एक लड़की पर नजर पड़ी, मुझे चाहिए था कि नजर झुका लेता, फितने से बच जाता, टिकटिकी बांध कर देखता रहा। अब हाल यह है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई, उससे प्यार हो गया और अब मैं जो है उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे शादी करूं, निकाह करूं उससे। आपने फरमाया, एक ईसाई लड़की से तुम निकाह करोगे, उससे शादी करोगे? तो कहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पूछा हजरत शेख शिबली ने, तुम्हें 30,000 हदीसें ज़बानी याद थी, कितनी हदीसें याद रह गई है? का सब भूल गया हूं, सिर्फ एक हदीस याद है, एक लड़की को देखने का वबाल, किसी लड़की पर पाप की नजर डालने का वबाल। कहते हैं कि 30,000 के 30,000 भूल गया, सिर्फ एक हदीस याद रही, और वो ये हदीस का मफहूम ये है, जो अपना दीन बदल दे उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। का 7 क़िरात से कुरान याद किया था, हिफ्ज किया था, कितनी आयतें रह गई? का 2 आयतों के सिवा कोई आयत याद नहीं, सब भूल गया, कुछ याद नहीं है। अब क्या इरादा है? कहा कि तुम लोग जाओ हज के लिए, मैं नहीं आता। सफरे हज से रुक गए, सिर्फ निगाहों की पाकीज़गी ना होने की बुनियाद पर, निगाहों पे कंट्रोल ना होने की बुनियाद पर, निगाहों की हिफाजत ना होने की बुनियाद पे शेख अबू अब्दुल्ला ने हजरत शेख अबू बकर शिबली से कहा कि जाओ, मैं हज को अब नहीं आता, तुम लोग जाओ। आप हज से रुक गए। जब ये खबर शागिर्दों में हुई तो सब रोना पीटना मच गया, आहो बुका करने लगे, बेचैन हो गए। बहुत समझाया, शागिर्दों ने हदीसें पेश की, कुरान की आयतें पेश की और कहा कि आप कर क्या रहे हैं? एक ईसाई लड़की की मोहब्बत में आप सफर हज से रुक रहे हैं, इतने बड़े काफिले को, मुरीदीन, खुलफा और शागिर्दों के काफिले को आप छोड़ रहे हैं। उनकी आंख में आंसू आ गए और कहने लगे, क्या करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर है, अल्लाह अकबर, खुदा की शान, मैं क्या कर सकता हूं मुझे नहीं पता। अल्लाह ने मुझे किस आजमाइश में मुब्तला कर दिया, किस आजमाइश में गिरफ्तार फरमा दिया, और उसके बाद फिर वो रोते पीटते चीखते चिल्लाते रह गए। और इधर शेख अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला उस ईसाई राहिब के पास गए और वहां पर जाने के बाद कहने लगे, क्या ये लड़की तुम्हारी है? उसने कहा हाँ, मैं चाहता हूं कि इसका निकाह मेरे साथ कर दिया जाए। तू कौन है? अल्लाह अकबर। उन्होंने अपना तारुफ कराया, बगदाद का सबसे बड़ा फकीह, बड़ा अजीम मुहद्दिस, अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा, मेरी बेटी का निकाह तो मैं उसी के साथ करूंगा, शादी उसी के साथ करूंगा जिसको वो पसंद कर ले। मैं उससे पूछता हूं, अगर वो उस पर राजी हो जाए तो मैं तेरे साथ उसका निकाह करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। ये दरवाजे के बाहर खड़े थे, उधर लड़की से अंदर उसका बाप सवाल कर रहा था। खूबसूरत होशियार लड़की ने कहा, वो मुसलमान है, हम ईसाई हैं, और मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? शादी के लिए एक ही शर्त है। अल्लाह अकबर। इधर उस लड़की की जबान से निकला, अगर वो ईसाइयत को कबूल कर ले तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपनी जबान से कह दिया, मैं ईसाई हो चुका हूँ, मैंने ईसाइयत को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। जब कहा ना कि मैंने ईसाइयत कबूल कर ली है, और उसके बाद वो लड़की ने बाहर आके कहा, ईसाइयत तो तूने कबूल कर ली है, अगर तुम मेरे जिस्म की लज्जतें चक्कर फिर यहां से चला गया तो फिर मैं कहां जाऊंगी? इसलिए मेरी शर्त है कि मेरा महर ये होगा, महर में ये होगा कि 1 साल तक तुझे यहीं रहना होगा, और जो मैं सूअर चराती हूँ खिंजीर, तुझे वो सूअर मेरे साथ चराने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, मुझे ये भी मंजूर है, मैं
सूअर चराने के लिए तैयार हूं, लेकिन तेरे बाप से इतनी बात कर ले कि वो जब मैं सूअर तेरे साथ चराया करूं और मेहर की अदायगी में सूअर चराऊं तो वो तुझे अपना चेहरा छुपाने के लिए ना कहे, बल्कि मैं तेरा चेहरा तकता रहूं। हर दुख सहेंगे, हर दुख झेल लेंगे, लेकिन तेरे चेहरे पे नकाब नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि जिस असा के सहारे कभी सहारा लेकर हदीस पढ़ी जाती थी, जुमा के खुतबे दिए जाते थे, कुरान की आयतें जिस असा का सहारा लेकर के तिलावत की जाती थी, वाज़ और नसीहत जिस असा को पकड़ करके की जाती थी, आज बदनिगाही ने अबू अब्दुल्ला को उस मकाम पर पहुंचाया कि उसी असा से वो सूअर के बच्चों को कवर कर रहे, उन्हें समेट रहे उसी असा से। ये हालत हो, ये कैफियत हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। वो लोग हज को गए, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत दुआएं की, बहुत आंसू बहाए, और उसके बाद जब वापस पलटे उसी गांव से, उसी शहर से, तो देखा ये सूअर चराते हैं, खिंजीर चराते हैं, उस लड़की के पीछे पीछे फिरते हैं। ये मंजर देखा, कहाँ वो हदीस की मसनद, कहाँ वो शेखुल कुरान का खिताब, कहाँ वो मुहद्दिस का लक़ब, कहाँ वो फकीह का लक़ब, और कहाँ पर ये मंजिल। अल्लाह अकबर। इन हालात के अंदर उन्होंने ये मंजर देखा, बहुत रोए, बहुत समझाया, आखिरकार रोते रुलाते वो वापस हो गए। अभी ये सोच रहे थे बगदाद जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों को क्या बात बताएंगे, लोग कितनी बातें करेंगे। बादशाह को पता चला, बादशाह ने सारे मदरसे बंद करवा दिए, सारी मसनदें उठवा दी कि ऐसा करते अहले इल्म। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सारी रौनकें रूठ गई, इल्मी रौनकें बगदाद मुअल्ला की सरजमीन से। अब मजीद जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या दिखाएंगे। कहते हैं सबके दिल पर गम था, बोझ था, तकलीफ थी। ऐसे में अभी बगदाद मुअल्ला करीब आ रहा था, हमने क्या देखा, कोई पीछे से साया नजर आता है, आवाज देता है रुको रुको, ठहरो ठहरो। हम ठहर गए तो क्या देखा, वो नहर में गुस्ल करके बाहर आता है, और आने के बाद बुलंद आवाज से पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह से वो पढ़ते, हमने देखा तो कोई और नहीं था, वो शेख अबू अब्दुल्ला ही थे। हम उनसे लिपट गए, उन्होंने कहा कि मैंने तौबा कर ली, मुर्तद हो गया था, नसरानी हो गया था, ये सब कुछ हो गया था, अल्लाह ने मुझे आजमाइश में मुब्तला कर दिया था, अब मैं उस लड़की को छोड़कर आ गया हूं और फिर से मैं मुसलमान हो गया हूं। मगर वो दौर इतना खूबसूरत दौर था, इतनी बड़ी गलती हो जाने के बाद भी अगर कोई तौबा कर ले तो वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, उसे कबूल कर लेते थे। आज हमारे यहाँ तो अगर कोई चोरी से तौबा कर ले तो फिर भी उसको चोरी का ताना दिया जाता है, अगर कोई जिना से तौबा कर ले तो भी उसको जिना का ताना दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी सच्ची तौबा करने वाले को उसके गुनाह पे आर दिलाता है, अल्लाह अकबर, उस वक्त तक आर दिलाने वाले को मौत नहीं आएगी जब तक वो उसी गुनाह में मुब्तला होकर के जलील ना हो जाए। चूंकि वो लोग इल्म वाले थे, तकवा वाले थे। शेख अबू अब्दुल्ला की इस गलती पर उनको सीने से लगाया तौबा के बाद, और फिर उसी शान के साथ चले। मसनदें सजने लगी, मदरसे खोल दिए गए, सारे मामला भुला दिए गए। आखिरकार एक शागिर्द ने पूछा, हजरत आप एक लड़की के हुस्न में आखिर मुर्तद हो गए, वजह क्या थी? आपने कहा ना मेरे एक गुनाह की वजह से। ये तो बदनिगाही का गुनाह था, ये तो बहुत बड़ा गुनाह था, ये तो, लेकिन इस बदनिगाही में वो मुब्तला कैसे हो गई? तो लोग पूछते थे वो कौन सा गुनाह था जो आपको बदनिगाही तक ले गया, सफर हज से रोक गया, इर्तिदाद तक ले गया, आप इर्तिदाद तक पहुंचे। उस वक्त उन्होंने किसी को नहीं बताया। दिन गुजरते गए, एक दिन ऐसा हुआ मसनद सजी हुई थी, दर्स हो रहा था हदीस का। एक बुर्का पोश खातून आई और उसने पूछा, क्या शेख अबू अब्दुल्ला यहाँ मौजूद है? लोगों ने कहा हाँ मौजूद है, मगर तुम कौन हो? कहा उनसे कहो कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। इस्लाम कबूल करने की बात आई तो दरवाजा खोल दिया गया, बुर्का पोश आके बैठ गई। उसने इस्लाम कबूल किया, कलेमा पढ़ा, और उसके बाद कहा अबू अब्दुल्ला मुझे पहचाना? कहा कौन हो तुम? उसने सारी दास्तान बताई, ये वही लड़की थी
जो आई। अब क्यों आई हो? कहा मैंने तो इस्लाम कबूल किया। कैसे कबूल किया? कहा कि आप जब मुझे छोड़कर चले गए तो मैंने ख्वाब में देखा सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली की ज़ियारत की, और वो मुझसे कहते हैं ए लड़की, दीन इस्लाम ही हक है, दीन इस्लाम ही हक है, दीन इस्लाम ही हक है। 3 बार उन्होंने कहा और कहा जा उसके हाथ पर जाकर इस्लाम कबूल कर ले। तो मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूँ या रसूल, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूँ, मुसलमान हो गई हूँ। और मुझे ये भी कहा कि तेरी वजह से वो इतने बड़े फितने में मुब्तला हुआ, अब तू इस्लाम कबूल कर और जाकर के उससे निकाह कर ले, ताकि तेरा हुस्न भी उसको नसीब हो जाए। उसने जो किया था वो तो पूरा हो गया, उसके साथ अल्लाह अकबर खुफिया तदबीर कर ली गई, मगर तौबा के बाद अब उसको इनाम ये मिले कि तू जाकर के उससे निकाह कर ले मुसलमान होकर। वो मुसलमान हो गई, निकाह हो गया। एक शागिर्द ने कहा हजरत सिर्फ इबरत के लिए बता दें, हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, खोज और तजस्सुस के लिए नहीं, सिर्फ इबरत के लिए पूछना चाहते हैं आखिर कौन सा वो गुनाह था जो आपको बदनिगाही तक ले गया और बदनिगाही आपको कुफ्र और इर्तिदाद तक ले गई। तो फरमाते हैं जब हम सफर हज में चले थे और इस गांव में पहुंचे, तो जो ये लड़की का गांव था उस गांव में पहुंचे थे, तो लोगों को हमने कुफ्र और शिर्क करते देखा, कुफ्र शिर्क करते देखा। तो उस वक्त तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कितना बड़ा मुत्तकी हूँ, कितना बड़ा पारसा हूँ, कितना बड़ा इल्म वाला हूँ, और ये सब बेवकूफ अहमक लोग शिर्क में मुब्तला हैं। मैं अपने तकवे पे घमंड कर रहा था और उन लोगों को गलत कामों से रोक नहीं रहा था। और फिर अल्लाह अकबर, एक ईसाई आया और आकर के मुझसे लिपटा और लिपट करके कहा कि मुझे भी मुसलमान बनाओ। तो मैंने कहा चल हट काफिर यहाँ से, और मैंने उसको धक्का दे करके भगा दिया और कहा मैं अल्लाह के नजदीक इतना मुकर्रब हूं, तुम मुझसे लिपटता है। तो उसने जाते जाते कहा अबू अब्दुल्ला, ये तो अल्लाह ही को पता है कौन अल्लाह के नजदीक मुकर्रब है और कौन अल्लाह के नजदीक मरदूद है। और कहते हैं कि वो गया, फिर मुझे न मिला, लेकिन बाद में मुझे पता चला अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता की, वो मुसलमान हो गया और रात और दिन इबादत करने लगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपनी इबादत और अपने इल्म और अपने तकवा के घमंड की वजह से मुझे ये सजा दी कि मुझे बदनिगाही के वबाल में मुब्तला फरमाया, और उस बदनिगाही ने मुझे जो है वो इर्तिदाद तक के पहुंचाया। ये मेरी दास्तान है। अल्लाह अकबर, कितनी इबरत की बात है। अगर कोई वाकई मुत्तकी होकर तकवे पे घमंड करे, अगर कोई वाकई इल्म वाला होकर इल्म पे घमंड करे, तो उसका ही अंजाम होता है। हमारे पास तो तकवा भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने आप पे घमंड करते हैं। अंदाजा फरमाए तो ये बदनिगाही का वबाल है।